Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 20th of December. In this video students, we will be talking about visit of Amit Shah to Chhattisgarh. Then we will be talking about a recent visit of Prime Minister of Mihail Paposi to India from 15th to 17th of December. Then we will be talking about boosting financial literacy, for which an MOU has been signed. Then we will be talking about a collaboration between IIT Guwahati and IIT Mandi. We will be discussing all these things in detail, so stay tuned with us till the end, as these news will be very beneficial for all the competitive exams. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise are uploaded on regular basis for your better learning. So let's start with the content. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs students. We are talking about Amit Shah's visit to Chhattisgarh from 13th to 15th of December, right? And remember, he was on a visit here to chair a security review meeting on the left wing extremism that was held in Raipur, Chhattisgarh. The focus here was on fine tuning the strategies to achieve the target of eliminating the menace by 31st of March 2026. During his visit, he also presented the President's Color Award to the Chhattisgarh Police for 25 years of dedicated service. Also remember, this initiative launched during this visit aimed to improve the public safety, foster economic growth and also contribute to the overall development of Chhattisgarh. Right, if we talk about Chhattisgarh state, what is the capital of Chhattisgarh? It is Raipur. Who is the Chief Minister of Chhattisgarh? Vishnu Diosai. Governor is Ramen Deka. Right? Next here is Union Home Minister has attends the Bastar Olympic closing ceremony. Where was this Bastar Olympic held? It was held at the Jagdalpur, Chhattisgarh, where he praised the local athletes and the people for their spirit and unity and sportsmanship. And who attended this closing ceremony? Attended by Amit Shah. This Bastar Olympics is an annual event held by the Chhattisgarh Sports and Youth Welfare Department to help the youth and other victims of Naxal activity showcase their sports talent. Next is Moldovan Deputy Prime Minister Mihail Poposai has visited India from 15th to 17th of December. Right? If we talk about his visit, he was here on the visit of, as you can see him in the picture here, our external affairs minister Dr. S. Jaishankar, right? And Moldova, they have recently joined the International Solar Alliance, correct? India and Moldova, they have also signed a declaration of intent to establish a migration and mobility partnership between these two countries. Let me show you here that India and Moldova, they signed this declaration of intent to establish a migration and mobility partnership between the two countries. Apart from this, an MOU was also signed that will aim to boost the cooperation and facilitate the exchange of information on training programs for diplomats. Next is IEPFA and ACCA. They have signed a memorandum of understanding to boost financial literacy in India, right? In order to provide more information to the general public about finance, how finance work, what are the ways that it can be used, what are the ways we can
utilize the money, and right, it is IEPFA, that is Investor Education and Protection Fund Authority, that comes under the Ministry of Corporate Affairs. They have signed this memorandum of understanding with ACCA, that is your Association of Chartered Certified Accountants, and it was signed in New Delhi. This will basically do what? It will enhance the education across the nation in urban and rural areas. This will be a 4 years partnership that will educate the young people about the fundamental financial concept and will also foster financial literacy in the society. If we talk about some of the programs, first is focus on the ACCA's financial literacy program. The program, also known as the Financial Education for You, 4-year course targeting school children in grade 6 through 9, aiming to foster financial decision making among the young minds. Second is offering of digital content. Here ACCA will offer the program's digital content at free of cost, making financial literacy accessible to a wide range of educational institutions. Right? Next is IIT Guwahati in collaboration with IIT Mandi and CSTEP Bengaluru have released the district level climate risk assessment report for India. Right? The IIT Guwahati is where? It is in Assam. IIT Mandi, it is in Himachal Pradesh. Right? And they have recently partnered to basically release a report, that is district level climate risk assessment report for India. It was launched at IIT Delhi in New Delhi. This report, it basically provides the in-depth analysis of the flood and drought risk across the 698 districts in India. This report will provide the district level flood and drought hazard, their exposure, their vulnerability maps, and also will help us to create a proper comprehensive framework that if there is a flood or risk, then what should be done during that time. Correct? Take a note of it. Moving on. Here there are some key findings of this report. This report provides a district level flood and drought hazard exposure vulnerability maps that helps in creating comprehensive flood and drought risk maps for India. In addition to the report, a detailed user manual was also released during the event. Moving on to international affairs. Bloomberg's World Richest Families 2024 list was released, and Waltons has topped the list with $432.4 billion. Ambani family was ranked on the 8th position, right? So this data released by Bloomberg's, this is the Richest Family 2024 index, and let me show you the list. The Waltons of Walmart, right, secured the first position. Al Nehan family second, Al Thani family third, the Hermes family fourth, fifth is the Koch family, and the sixth is the Ambani family with $99.6 billion. Remember, recently Anil Gautam Adani and Mukesh Ambani, they both have been dropped out from the Bloomberg's $100 billion list. Next is 3 Indian women on Forbes 2024 World's 100 Most Powerful Women list, topped by Ursula von der Leyen. Right? So, which are the 3 women in this list that are from India that we need to remember? Those are Nirmala Sitharaman on 28th position, then Roshni Nadal Malhotra on 81st, Kiran Majumdar-Shaw on 82nd position. Now if we talk about globally, Ursula von der Leyen, the president of EC from Belgium, secured the top position, then Christine Lagarde, third Giorgia Meloni, fourth Claudia Sheinbaum, and fifth is your Mary Barra. Correct? This data released by which organization? It released by Forbes, and this is the 21st annual ranking of the world's 100 most powerful women list. Next is your banking and finance. Government of India, they have signed 3,044 crore rupees loan agreement with KfW Germany for Bengaluru Metro Rail Phase 2. So the second phase of this Bengaluru Metro, 3,044 crore rupees has been approved by the government of India. Take a note of this. And here, remember, this phase 2, it will be covering 75.06 kilometers and has approved a senior debt of 12,141 crore rupees, out of which the government has already secured 9,096 crore rupees from JICA, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, European Investment Bank, etc. Also, the Bengaluru Metro project, this is also known the Namma Metro. Namma Metro. Correct? Moving on.
Next is AU Small Finance Bank. They have partnered with BALIC for Banker Solution. What is this Banker Solution? When a bank and an insurance company comes together, and the insurance company sells the products of the or sells the insurance products to the customers of the bank. Correct. So they have recently partnered with AU Small Finance Bank. They have partnered with BALIC. BALIC is your insurance company, that is Bharti AXA Life Insurance Company, and the bank here is AU Small Finance Bank. Next is RBI. They have cancelled the registration of Zavron Finance due to non-compliance of certain directions by RBI. Correct. And here, so remember, it is RBI. Correct. They have recently cancelled the certificate of registration of Zavron Finance Private Limited, that is an NBFI, non-banking financial institution based in Nagpur, Maharashtra. Correct. And this action was taken due to the irregular lending practices and serious breaches of the RBI's guideline on the digital lending by Zavron Finance. Next is RBL Bank and Bajaj Finance. They end their co-branded credit card partnership. So recently, RBL Bank, that is Mumbai, Maharashtra based bank, they have recently cancelled or they have ended their 8-year long partnership for the co-branded credit card due to the changes in the synergies. Next is banking and finance. Government of India has signed 3044 crore rupees loan agreement with KfW Finance, right? And we have seen this. Moving on. Next is LTF partnered with Amazon Finance India to enhance the credit solutions for the customers and merchants. See, coming up with artificial intelligence, right? We know that AI is in the market, right? With the help of AI, we are seeing that better customized solutions are being provided to the customers, right? The ultra high net worth individuals or high net worth individuals, they can get better services, better options for customers or better options for investment. Correct. So recently, for the same reason, Mumbai Maharashtra based L&T Finance Limited, right, that they have collaborated with Bengaluru Karnataka based Amazon Finance India Private Limited, where they will be creating innovative credit solutions to improve the affordability for Amazon's eligible customers and merchants by offering them loan products through Amazon's application and website. Next is awards and recognition. Oxford University Press names brain rot as the word of the year 2024. Take a note of this. Which will be the word of the year 2024 as per the Oxford University? It is brain rot. This brain rot, it refers to the deterioration of the person's mental or intellectual state, often attributed to the overconsumption of the content that is seen as trivial or intellectually unchallenging. Right? Take a note of it. Moving on. Next is your appointments and resignation. Rupam Roy elected as the General Secretary of AISBOF. What is this AISBOF? That is your All India State Bank Officers Federation. So Bengaluru, Karnataka based All India State Bank Officers Federation elected Rupam Roy as their new General Secretary during the 6th Executive Committee meeting held in Chandigarh, Punjab. He assumed the office on 1st of December 2024 and he succeeded Deepak Kumar Sharma, who retired on 30th of November. Next is your science and technology. China has launched 4 PISAT-2 remote sensing satellite to enhance the Earth observation capabilities, right? So it is your China. They have launched this 4 PISAT. This is your an 4th Earth observation radar satellite that was named PISAT. This was launched using the Long March 2D rocket. It was launched from Shaanxi province in China. This marks China's 65th space launch of the 2024 and 553rd launch of the Long March rocket series. And this PISAT-2 mission is enhancing the China's satellite network for efficient Earth monitoring. Next is your sports. Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 was held and Mumbai has beaten Madhya Pradesh to win the second title. This was the 17th edition of the Syed Mushtaq Ali Trophy and it was held from 23rd of November till 15th of December. And here Syed Mushtaq Ali Trophy, that was 17th edition of which was won by Mumbai. Mumbai defeated Madhya Pradesh in the finals. Next is your obituary.
Renowned Indian tabla player and Padma awardee Zakir Hussain has passed away. As you can see him in the picture, very famous tabla player, renowned Zakir Hussain, passed away at the age of 73 in California, USA. And Zakir Hussain was awarded with Grammy 4 times. He received Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri also. And he received this Padma Vibhushan in 2023, Padma Bhushan in 2002 and Padma Shri in 1988. Next is your important days. International Migrants Day observed on 18th of December, and it is basically to contribute the or basically create awareness about the contributions of migrants that make societies worldwide, right? It highlights the challenges that are faced in achieving their full potential and emphasizing the importance of the rights of those migrants. So International Migrants Day observed on 18th of December, and this year it was the 24th edition of this day that was observed. There is a theme that is honoring the contribution of migrants and respecting their rights. This is the theme here that I want you all to remember. Next is your UN Arabic Language Day observed on 18th of December. This day is observed basically to create awareness about Arabic language, that is one of the 6 official languages of UNA that was established in 1973. And this year it was the 51st anniversary of the Arabic's official recognition at the UN. Next is your National Minority Rights Day observed on 18th of December. This day is observed to create awareness about the rights of the religious minorities. This day highlights the importance of freedom and equal opportunity for the minorities in India while they're raising awareness about their rights. There is a theme also for this day, that is promoting diversity and protecting rights. And this year it was the 12th edition of the National Minority Day that was observed. So students, that's all for the day. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, किनको अभी रिसेंटली अवार्ड किया गया टर्नर प्राइज से थ्रू आउट फॉर द थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन ऑल्टर अल्तार. ये जो थॉट प्रोवोकिंग एग्जीबिशन था ना ऑल्टर अल्तार, बेसिकली ये क्या अवार्ड था, ये आपका माइग्रेशन जो है ना, जो माइग्रेशन करते हैं राइट, जो आपका एक कंट्री से दूसरी जगह चले जाते हैं राइट, उनको यहाँ पे उनका कल्चर जो डिफरेंस आ जाता है, उनको कल्चर इनहेरिट करना पड़ता है दूसरा राइट, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है इस ऑल्टर अल्तार एग्जीबिशन में. तो जसलीन कौर को सम्मानित किया गया है यहाँ पे टर्नर प्राइज 2024 से. नेक्स्ट, देवेंद्र फडणवीस ये कौन से चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ये 21वें चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के. एंड इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे एंड अजीत पवार ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं. तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 1. नेक्स्ट, दिसंबर में अभी इसरो ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन. आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया. प्रोबा 3 मिशन में 2 सैटेलाइट हैं, एक तो है कोरोनोग्राफ और दूसरी है ऑकल्टर. ये जो आपका प्रोबा 3 मिशन है ना, बेसिकली आपके PSLV एक्सेल वेरिएंट रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम आंध्र प्रदेश. एंड सन की आउटर सरफेस कोरोना को स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द वीमेन एंड मेन सिंगल टाइटल इन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट इन लखनऊ यूपी. तो किनके द्वारा जीता गया, PV सिंधु एंड लक्ष्य सेन. PV सिंधु ने वीमेन सिंगल टाइटल एंड लक्ष्य सेन के द्वारा मैन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता गया. नेक्स्ट, इन विच ट्राइबल लैंग्वेज RBI ओडिशा ऑफिस ने अभी रिसेंटली रिलीज की 5 बुकलेट्स जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस क्रिएट कराने का काम करेंगे अमंग ट्राइबल पीपल. तो ट्राइबल पीपल के लिए उनकी ट्राइबल लैंग्वेज में लॉन्च किया होगा, तो संतली लैंग्वेज में यहाँ पे लॉन्च की गई हैं ये 5 बुकलेट्स. नेक्स्ट, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, इनको अभी इन्होंने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स दैट आर वर्थ हाउ मच. तो ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये 21,772 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट रहेंगे टोटल, जिसमें हम बात करेंगे 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स की, 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स की, 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की. देन हम बात करेंगे T-72 टैंक्स एंड T-90 टैंक्स की जो यहाँ पे प्रोक्योर किए जाएंगे. इवन सुकोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन्स भी यहाँ प्रोक्योर करने की बात की गई.
नेक्स्ट, यूनेस्को ने ऑफिशियली अभी रिकॉग्नाइज किया ट्रेडिशनल जैपनीज साके मेकिंग प्रोसेस को। क्या? तो इन्होंने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया है। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि साके क्या है? ये एक आपकी एक ट्रेडिशनल एल्कोहल है जापान की, राइट। राइस से इसको बनाया जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से इसको बनाया जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इंटेंजिबल है, आप इसको टच नहीं कर सकते। टेंजिबल क्या होगा? जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल रेड फोर्ट हो गया, हमारा ताजमहल हो गया, ये एक ट्रेडिशनल है, ये कल्चर है हमारा, राइट। लेकिन ये टेंजिबल है, इसको आप टच कर सकते हैं, प्रोसेस को आप टच नहीं कर सकते। तो अभी यूनेस्को ने साके मेकिंग प्रोसेस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, अंडर द सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट ऑफ 1992, सेबी ने रिलीज किया सर्कुलर जो ग्रांट करता है सेबी को टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रमोट्स इट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा गया द इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ फॉर कैश डेरिवेटिव्स एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम कब से? तो ये कब से लागू हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2025 से ये यहाँ पे लागू होते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट, किस बैंक ने भी अप्रूव किया 350 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड लोन जो एड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर? तो किसके द्वारा ये यहाँ पे लोन अप्रूव किया गया है 350 मिलियन डॉलर का? तो वो रहेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। नेक्स्ट, किसने अभी रिसेंटली अपॉइंट किया 26वां गवर्नर ऑफ आरबीआई? कौन अपॉइंट किए गए हैं 26वें गवर्नर ऑफ आरबीआई जो रिप्लेस करेंगे शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर थे? सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड में इनकी A+ रेटिंग थी, करेक्ट। एंड इनका टर्म 11 दिसंबर से स्टार्ट होगा एंड 3 साल के लिए इनका टर्म रहेगा। तो ये है संजय मल्होत्रा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, ये 26वें गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट, किस डिफेंस कंपनी ने अभी रिसेंटली डिलीवर्ड किया सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्वेलेंस ड्रोन को टू द इंडियन नेवी एट द पोरबंदर बेस इन गुजरात? तो किसके द्वारा डिलीवर किया गया दृष्टि 10 स्टारलाइनर्स? और ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर्स इजराइल का हर्मीज जो ड्रोन्स हैं उनकी ये एक रेप्लिका रहता है, राइट। एंड यहाँ पर किस कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर किया इसको? तो अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के द्वारा ये डिलीवर किए गए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट को या कौन सा स्टेट होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को अप्रैल के महीने में? बिहार होस्ट करेगा इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया हैज बैक द मीडिया राइट्स फॉर ऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट। कब से कब तक? 2024 से 2031 तक मीडिया राइट्स रहेंगे अब सोनी पिक्चर्स के पास। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया पहला 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? ये कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से लेके पुणे तक रहेगा। एंड एक्सपेक्टेड है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बस 25 मिनट का रह जाएगा। 1100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पे इस हाइपरलूप में आपकी व्हीकल चलेगी, करेक्ट। तो डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए किस आईआईटी ने टेस्ट किया पहले 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को? तो ये टेस्ट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया 91 मिलियन यूरोस का लोन फ्रॉम ड्यूशे बैंक एजी इंडिया? ड्यूशे बैंक जर्मनी का है, इनकी ब्रांच जो इंडिया में है उनसे यहाँ पे किस कंपनी ने रिसीव किया है ये 91 मिलियन डॉलर का, 91 मिलियन यूरो का, नॉट डॉलर, 91 मिलियन यूरो का लोन? तो किसके द्वारा रिसीव हुआ ये? SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अबॉलिशन ऑफ द स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम विंडफॉल टैक्स भी कहते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एविएशन फ्यूल, इन चारों पे यहाँ पे जो विंडफॉल टैक्स है इसको एलिमिनेट कर दिया है। इससे क्या होगा? कंपनी के जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज होता हुआ हम देखेंगे कि वैल्यू बढ़ गई उसकी, इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। फिर इसी के साथ साथ क्या है कि अब विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस क्यों करा गया था? जुलाई 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जब रशियन यूक्रेन वॉर हुई थी, राइट। तो जो प्रॉफिट अर्न किया गया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट बाय ऑयल कंपनीज के द्वारा, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा कम करने के लिए इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या है? नेचुरल गैस पर ये विंडफॉल टैक्स एलिमिनेट नहीं किया गया। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द 29th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो वो है शामी सिल्वा। शामी सिल्वा ये सक्सीड करेंगे जय शाह को। जय शाह क्या बन गए हैं? ये चेयरमैन बन गए हैं आईसीसी के। एंड शामी सिल्वा अब नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, 29वें प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट, नेम द अनमेंड सरफेस वेसल का नाम बताओ। जैसे यूएवी होता है ना, अनमेंड एरियल व्हीकल, लैंड के ऊपर, राइट, हवा में ड्रोन्स में काम करने के लिए, ऐसे ही अनमेंड सरफेस वेसल का नाम बताओ जो कि अभी हैंड ओवर किया गया टू नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बाय
GRSE, उसका नाम रहेगा जलदूत। ठीक है, ये है अनमैन्ड सरफेस वेसल। नेक्स्ट, किस मिशन के लिए डिड इसरो ने अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ एक क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान यहाँ पे साइन किया, जो प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट। किस मिशन के लिए? गगनयान मिशन के लिए। एंड गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन रहेगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ BSE लिमिटेड? कौन अपॉइंट किए गए हैं? सुभाशीष चौधरी जी। मार्क करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर अभी 100 डे का TB एलिमिनेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था JP नड्डा जी के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया था हरियाणा में। 100 डे का ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है कि 2025 तक हमें TB को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट, 68th सेशन ऑफ डैश इंडिया हैज़ रिसेंटली अज्यूम द चेयरमैनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सा सेशन था ये? 68th सेशन था आपका यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स का। राइट, ड्रग्स को एलिमिनेट करने के लिए, करेक्ट, इलीगल यूज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जो इसकी इतनी ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की, उसको ख़त्म करने के लिए ये सेशन था। एंड यहाँ पे इंडिया ने अज्यूम करी है इस सेशन की चेयरमैनशिप। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवेल किए 2 नए लोन स्कीम्स, जो कि हैं बड़ौदा महिला स्वावलंबन एंड बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। यह बड़ौदा महिला स्वावलंबन लॉन्च किया गया है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, वीमेन को एम्पावर करने के लिए एंड इनको लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। यहाँ पे 9.15% का इनको लोन मिलेगा एंड 20 लाख रुपए से लेके 7.5 करोड़ तक का ये लोन अवेल कर सकते हैं। वहीं पे बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट की बात करें, ये MSMEs को लोन प्रोवाइड कराने के लिए, इनको फाइनेंस करने के लिए लॉन्च किया गया है बड़ौदा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रहेगी, करेक्ट, एंड 50,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल सकता है इनको 10% के हिसाब से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज आवर होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट टेल मी रिसेंटली वेयर वॉज योर, और टेल मी COP16 was held where? Second, who will be having the chairmanship of BRICS now after Russia handed over to that country? Third, recently tell me, if I ask you SHIELD, this is a initiative to protect the users from digital transaction frauds. This SHIELD has been launched by which organization? So that's all for the day, students. If you find the session interesting, do hit the like button. Now students, let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 20 दिसंबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमित शाह ने विजिट किया छत्तीसगढ़ पे। देन हम बात करेंगे मोल्डोवन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिहाइल पोप्सोई, ये विजिट पे थे इंडिया में, करेक्ट। क्या चीज़ें यहाँ पे साइन की गई, किन के ऊपर बात की गई। देन इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए अभी एक MOU साइन किया गया है। देन IIT गुवाहाटी एंड IIT मंडी ने भी अभी एक कोलैबोरेशन करा, करेक्ट। किस चीज़ के ऊपर कोलैबोरेशन है वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। देन ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज़ की रिपोर्ट यहाँ पे इंडेक्स रिलीज़ किया गया। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा हमारा। अगर स्टूडेंट्स आप नए जुड़े हैं हमारे साथ और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर ले। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 5 बजे। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर हो सके। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description.
चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेशनल अफेयर्स हैं तो हम बात कर रहे हैं अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ विजिट किया 13 से 15 दिसंबर तक एंड ये यहाँ पे बेसिकली चेयर करने गए थे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ऑन द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। एंड यहाँ पे इनके द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भी सम्मानित किया गया टू द छत्तीसगढ़ पुलिस ताकि इनके 25 साल सर्विस में डेडिकेट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसी के अलावा हमारे होम मिनिस्टर ने अटेंड किया बस्तर ओलंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी को। बस्तर ओलंपिक्स ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका जगदलपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, जहाँ पे लोकल एथलीट्स को प्रेज किया गया। एंड ये बस्तर ओलंपिक एक एनुअल इवेंट है, छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि यूथ्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं मोल्डोवन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, मिहेल पॉप्सॉय। इनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था हमारे डॉक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। एंड इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब यहाँ पे ये विजिट किया, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बात की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मोल्डोवा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बन गया है। देन इंडिया एंड मोल्डोवा के बीच में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ जहाँ पे माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप की बात की जाएगी बिटवीन इंडिया एंड मोल्डोवा। यहीं पे हम देखेंगे कि आपका इंडिया और मोल्डोवा के बीच में जो एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशन का ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डिप्लोमेट्स, उसको भी यहाँ पे एक्सचेंज करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं IEPFA। ये IEPFA क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती है। इन्होंने एंड ACCA जो कि है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके अबाउट द फाइनेंस की कैसे पैसे सेव करने हैं, कहाँ पे पैसे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, पैसे की क्या वैल्यू रह जाती है, क्या पैसे बनता है, कैसे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब सारी चीज़ पैसे से रिलेटेड यहाँ पे बच्चों को, एक जो यंग पीपल है उनको फाइनेंशियल कंसेप्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कराने के लिए ये यहाँ पे MOU साइन किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर यू, ये एक प्रोग्राम 4 सालों के लिए लॉन्च किया गया है। ऑफरिंग ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट, यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिजिटल कंटेंट है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, मेकिंग फाइनेंशियल लिटरेसी असेसेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर IIT गुवाहाटी। इन्होंने कोलैबोरेट किया IIT मंडी के साथ ताकि CSTEP बेंगलुरु रिलीज्ड एंड CSTEP, मतलब इन तीन ऑर्गेनाइजेशन में IIT गुवाहाटी, IIT मंडी एंड CSTEP, इन्होंने मिलकर रिलीज़ किया डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट 2024 को इंडिया में। ये रिपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराती है कि जो हमारा फ्लड है एंड जो ड्रॉट है, करेक्ट, इनके ऊपर यहाँ पे काम करने के लिए कि कहाँ पे कितना ड्रॉट, सूखा पड़ सकता है या फ्लड आ सकती है, उसका लेवल क्या है, वहाँ पे आपका क्या एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है, कितनी वर्नेबिलिटी है वहाँ पर, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर हमारी अगर हम देखें इससे इफेक्टेड है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे इनके द्वारा कोलैबोरेट करके ये रिपोर्ट यहाँ रिलीज़ की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर की फाइंडिंग देखें तो ये भी यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्लड एंड ड्रॉट हैजार्ड्स हैं, एक्सपोजर हैं, वल्नरेबिलिटी मैप्स हैं, इनके ऊपर काम किया जाएगा। एंड इन एडिशन टू द रिपोर्ट अ डिटेल यूजर मैनुअल वाज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द इवेंट। मूविंग फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। अभी ब्लूमबर्ग वर्ल्ड्स रिचेस्ट फैमिली लिस्ट की बात करें तो वॉल्टन्स ने यहाँ पे टॉप कर लिया विद $432.4 बिलियन। अंबानी जी की 8th पोजीशन पे लिस्ट रैंक आ गई है। लेकिन देखो सबसे पे है वॉल्टन ऑफ वॉलमार्ट फर्स्ट पे, सेकंड अल नेहान फैमिली, थर्ड अल थानी फैमिली, फोर्थ द हर्मीज फैमिली, फिफ्थ द कोच फैमिली और 8वीं पोजीशन पे आ जाते हैं द अंबानी फैमिली इंडिया से। एक और चीज़ याद रखेंगे, मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी, इन दोनों को यहाँ पे अभी रिलीज़ कर दिया, या फिर ये दोनों जो फॉर्ब्स की $100 बिलियन क्लब जो होता था उसमें से ये बाहर हो गए क्योंकि दोनों की $100 बिलियन से वेल्थ कम हो गई है। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 99.6 बिलियन हो गई है अंबानी फैमिली की। नेक्स्ट आ जाते हैं 3 इंडियन वीमेन ऑन फॉर्ब्स 2024 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये फॉर्ब्स के द्वारा लिस्ट रिलीज की गई है 2024 की वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन। अगर इसमें लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट रहेगी? ये एक तो 21वीं लिस्ट है, 21वां एडिशन है इस लिस्ट का। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रोशनी नादल मल्होत्रा, राइट, निर्मला सीतारमन जी एंड किरण मजूमदार शॉ, ये तीनों इस लिस्ट पे रहेंगी इंडिया से। यहाँ पे इनकी रिस्पेक्टिव रैंक है। और अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे उर्सुला वॉन डर लेयन, देन सेकंड पे क्रिस्टिन लगार्ड, थर्ड पे जॉर्जिया मेलोनी,
फोर्थ पे क्लॉडिया शेनबॉम एंड फिफ्थ पे मैरी बेरा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3044 करोड़ रुपए का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है KFW जर्मनी के साथ फॉर बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 2। सेकेंड फेज को कंप्लीट करने के लिए ये लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसको बेंगलुरु रेल मेट्रो को एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नम्मा मेट्रो। ठीक है, एंड यहीं पे याद रखेंगे इसका फेज 2 यहाँ पे अभी कंप्लीट किया जाएगा, जिसके लिए 3044 करोड़ रुपए यहाँ पे ऑलरेडी अलोकेट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने BALIC जो कि है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, राइट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बैंकरेंस पार्टनरशिप साइन हुई है। बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक इंश्योरेंस कंपनी को या फिर एक बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में टाइप होता है और इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर RBI ने कैंसिल कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ ज़ेवरॉन फाइनेंस ड्यू टू नॉन कंपाइलेंस, राइट। इनकी कुछ गाइडलाइंस थी RBI की, करेक्ट, इलीगल तरीके से इन्होंने यहाँ पे लोन बांटा है, राइट, ज़ेवरॉन फाइनेंस ने, एंड इसीलिए इनका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल कर दिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट आ जाते हैं RBL बैंक एंड बजाज बैंक। इन्होंने अभी रिसेंटली को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की जो पार्टनरशिप थी ना उसको ख़त्म कर दिया है। अब दोनों यहाँ पे इंडिविजुअल तरीके से अपने रन कर सकते हैं जिस हिसाब से करना है, राइट। तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड RBL बैंक, करेक्ट, इन्होंने अभी रिसेंटली टाइप या फिर इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप थी बजाज फाइनेंस के साथ वो ख़त्म कर दिया है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 3044 करोड़ रुपए का लोन अग्रीमेंट साइन किया KFW जर्मनी के साथ फॉर बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 2 के लिए, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर LTF। इन्होंने पार्टनर किया अमेजॉन फाइनेंस इंडिया के साथ ताकि जो क्रेडिट सॉल्यूशन अपने कस्टमर्स एंड मर्चेंट्स को उनको यहाँ पे एनहेंस कर सके। इससे क्या होगा? LTF इनकी पार्टनरशिप से क्या होगा? तो यहाँ पे आप AI की मदद से इनोवेटिव क्रेडिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं टू इम्प्रूव द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द अमेजॉन्स एलिजिबल कस्टमर्स, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इस कोलैबोरेशन से जो L&T का फाइनेंस प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है उसमें एनहेंसमेंट देखने को मिलेगा, राइट, एंड जो SMEs हैं, 2 व्हीलर लोन्स है, फाइनेंसिंग एंड मैनी मोर, उनको यहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इवन याद रखेंगे फेड के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको 0.25% से यहाँ पे कट कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। इंडिया में अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आती है तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो नेगेटिव होगी, क्योंकि इंडिया में ना उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया ब्रेन रॉट एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024। ये ब्रेन रॉट क्या होता है? ये बेसिकली एक नाउन है जो कि बताता है पर्सन की मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट को दैट कम्स टू द ओवर कंजप्शन ऑफ कंटेंट दैट इज सीन एज ट्रिवियल और इंटेलेक्चुअली अनचैलेंजिंग, राइट। तो ब्रेन रॉट हो जाता है जब आप एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं, आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते बट देखे जा रहे हैं, करेक्ट, आप उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं सेम प्रैक्टिस को, तो वो ब्रेन रॉट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। रूपम रॉय, इनको इलेक्ट किया गया एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ AISBOF। ये क्या है? ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के रूपम रॉय इलेक्ट किए गए हैं एज द जनरल सेक्रेटरी। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये सक्सीड करेंगे दीपक कुमार शर्मा को, जो कि 30 नवंबर 2024 को इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। चाइना ने अभी लॉन्च किया 4PISAT-2, जो कि एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहेगी टू एनहेंस द अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़। ये चाइना का 65th लॉन्च रहेगा 2024 का। एंड ये जो आपकी PISAT-2 है ना, ये आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट रहेगी। इससे आप इजीली यहाँ पे डे एंड नाइट में, ऑल वेदर टेरेन में, हाई रेजोल्यूशन में आप यहाँ पे टेरेन का कैप्चर कर सकते हैं इजीली। तो चाइना के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर आते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हमें देखने को मिली एंड मुंबई ने मध्य प्रदेश को हरा लिया टू विन द सेकंड टाइटल। मतलब दूसरी बार इन्होंने यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने इसको जीता है। मुंबई, अगर हम बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो ये इसका 70th एडिशन हमें देखने को मिला था एंड इनका फाइनल इवेंट बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था एंड ये मुंबई की सेकेंड टाइम टाइटल रहेगा ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का।
नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर। रिनोन्ड इंडियन तबला प्लेयर एंड पद्मा अवार्डी जाकिर हुसैन सर, इनका रिसेंटली निधन हो गया, मार्क करके चलेंगे। 73 की एज में कैलिफोर्निया यूएसए में इनका निधन हुआ। इनको पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री तीनों से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मा विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था सन 2023 में, राइट। पद्मा भूषण से सन 2002 में एंड पद्मश्री से इनको 1988 में सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। माइग्रेंट्स जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनको जो डेली बेसिस पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, राइट, प्रॉपर अपने घर का देखना पड़ता है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, करेक्ट। तो माइग्रेंट्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, राइट, क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 दिसंबर को। इस बार 24th एडिशन हमें देखने को मिला। इसकी एक थीम याद रखेंगे, ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यूएन अरेबिक लैंग्वेज डे, राइट, एंड अरेबिक लैंग्वेज याद रखेंगे, इट इज़ वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन जो कि 1973 में डिक्लेयर की गई थी, करेक्ट। एक और चीज़ याद रखेंगे, इस बार हमने 51st एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी है, अरेबिक ऑफिशियल रिकॉग्निशन एट द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके कल्चर एंड ट्रेडिशन को फर्दर सामने लाने के लिए ये डे ऑब्जर्व करता है। इसकी एक थीम याद रखेंगे, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला बताओ किन्होंने अभी ग्रिप्स टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी, यूरो ग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर। सेकंड, अभी रिसेंटली बताओ, अगर बात की जाए इंडिया या फिर इसरो एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मिलकर एक मिशन को लॉन्च किया गया था स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस में, उस सैटेलाइट का नाम बताओ। उस सैटेलाइट के साथ साथ मुझे उस रॉकेट का भी नाम बताओ जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, राइट। फिर एक और चीज़ बताओ, थर्ड, सिनबेक्स, ये एक एक्सरसाइज है, कहाँ पर हुई थी, लोकेशन बताओ, करेक्ट। एंड ये इनॉग्रल एडिशन है, किन दो कंट्रीज़ के बीच में हमें देखने को मिलती है। इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, ये आपका 4th होमवर्क क्वेश्चन होगा। अभी रिसेंटली 16th एडिशन ऑफ द रेजिंग BSF ऑब्जर्व करा, किस दिन इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का सेशन। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को, हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रॉक्सीमेटली 75 years टू रीच 1/4 ऑफ US पर कैपिटा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया जो बताता है कि इंडिया को अगर पर कैपिटा इनकम मैच करना है ऑफ यूएसए तो इंडिया को 75 years लगने वाले हैं। चाइना की बात करें तो चाइना को 10 साल लग जाएंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं वियतनाम की, इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को 70 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रिपोर्ट आई वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की। इंडिया की रैंक क्या थी इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2023 विद एन एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $51 billion। तो इंडिया की पोजीशन 8th रही इन द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन 2023, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू है $51 billion। यहीं पे यूरोपियन यूनियन की बात करें, इनकी फर्स्ट पोजीशन आई विद एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ $836 billion, फॉलोड बाय यूएसए ऑन सेकेंड पोजीशन एंड ब्राजील ऑन थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट को रिलीज किया, जो दर्शाता है कि ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023 डिक्रीज हो गया टू 13%, रिप्रेजेंटिंग अ 15-year लो। तो ये रिपोर्ट ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये 12वीं एडिशन है ऑफ दिस ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 की। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन को रैंक किया गया फर्स्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द 9th एडिशन ऑफ इंडियन रैंकिंग 2024 बेस्ड ऑन NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई। ये 9th एडिशन है ऑफ इंडियन रैंकिंग्स, जिसमें पूछा गया कि किसने टॉप किया इन द ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने ऑफ चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पे टॉप किया है इन द ओवरऑल कैटेगरी।
फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। सेकेंड पोजीशन पे बात करें तो IISc बेंगलुरु कर्नाटका, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाता है IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट स्टेट किया दैट इंडिया लॉस्ट 33.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ क्रॉप ड्यू टू एक्सेस रेन्स एंड एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर्स ड्यू टू ड्रॉट 2015 से 2021 के बीच। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, एंड इसमें हमें जो एक्सपेक्टेशन देखने को मिली वो ये थी कि क्लाइमेट इरेगुलरिटीज की वजह से, हीट वेव्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, इरेगुलर मॉनसून की वजह से इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स लैंड है उसको यहाँ पे लूज किया। इवन सेवरल इंडियन सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इनको लॉस हुआ ऑफ ऑलमोस्ट $160 बिलियन का 2021 में, बिकॉज ऑफ राइजिंग और बिकॉज ऑफ जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से इम्पैक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में अमंग द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव, वो कितना था? वो था 6.6% इन अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ FY25। यहीं पे जो मेल्स हैं अबव 15 ईयर्स एंड अबव, उनका जो डिक्रीज हो गया टू 5.8%, वेयर जो फीमेल्स हैं उसमें हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली ऑफ 9% तक की। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी को रैंक किया गया 70th इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 2024 लिस्ट? तो ये रहेगी रेजर पे। ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टाइम इस लिस्ट पर आई है रेजर पे, एंड ये ओनली कंपनी है जो कि इस लिस्ट में रहेगी। 3300 से भी ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज़ हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर इस लिस्ट में फोर्ब्स क्लाउड 100 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी आ जाती है? वो है ओपन AI। सैम ऑल्टमैन यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट, किस फैमिली को रैंक किया गया फर्स्ट इन द बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट स्यूरेन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट 2024 के हिसाब से? तो वो है अंबानी फैमिली। इनकी फर्स्ट पोजीशन रही यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे बजाज फैमिली, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाती है बिरला फैमिली। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली रिलीज किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक एनुअल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट इंडियाज ओवरऑल टेली डेंसिटी इंक्रीज्ड from 84.51% at the end of March 2023 to 85.69% at the end of March 2024। तो किसके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया? TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 की रिपोर्ट, डैश हैज एमर्ज एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड विद AAA+ रेटिंग। तो यहाँ पे अमूल यहाँ पर सामने निकल के आया है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड वो है अमूल। अगर मैं फूड सेक्टर की बात करूं तो फूड सेक्टर में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड निकल के आया है? वो है नेस्ले। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में नेस्ले ने यहाँ पे टॉप किया, इन ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट के हिसाब से अमूल वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड एंड डेयरी ब्रांड निकल के सामने आया है AAA+ रेटिंग के हिसाब से फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इनकी अमूल की जो वैल्यूएशन है 11% से बढ़ती हुई दिखी टू $3.3 बिलियन। नेक्स्ट, किस इंडियन सिटी को या किस इंडियन सिटी की सेकंड रैंक रही इन द एनुअल प्राइस राइज ऑफ प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 अकॉर्डिंग टू प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q2 2024, जो कि नाइट फ्रैंक के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। तो रेजिडेंशियल एरियाज में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लैट्स हो गए, कॉन्डोज हो गए, इनमें जो प्राइस बढ़ता हुआ दिखा, तो फर्स्ट पोजिशन पे कौन सी रही? वो आ जाती है मनीला। मनीला है फिलीपींस में, ये कैपिटल सिटी है फिलीपींस की, राइट, ये फर्स्ट पे। सेकंड पे आ जाती है मुंबई, थर्ड पर आ जाती है हमारी दिल्ली NCR रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए इंडेक्सेस। अब आ जाते हैं कुछ डिफेंस पर। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिसीव किया क्लियरेंस फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है 200 एस्ट्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल का। 4.5 मैक तक की इनकी स्पीड रहेगी इन एस्ट्रा मिसाइल्स की। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जो कि बिगेन हुई सुलूर एयरबेस में इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तरंग शक्ति, राइट। ये तरंग शक्ति 61 ईयर्स में के बाद आफ्टर इंडियन सॉइल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रही है। ये लार्जेस्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, सुलूर एयरबेस में हो रही है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। एंड इसी के अलावा याद रखेंगे यहाँ पे 30 कंट्री से भी ज्यादा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट, नेम द लार्ज स्केल स्ट्राइक कॉप्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई इन यूटी लद्दाख में। तो वो है पर्वत प्रहार, जिसको हम माउंटेन स्ट्राइक एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। कहां पर हो रही है? इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इंडियन आर्मी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। पूछा जा सकता है कि कौन कंडक्ट करा रहा है पर्वत प्रहार एक्सरसाइज को लद्दाख में? तो इंडियन आर्मी। नेक्स्ट, उस बायलेटरल एयर एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा 5 से 9 अगस्त तक इन क्वांतन मलेशिया। तो उस बायलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है उदारा शक्ति, राइट। तो ये इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई एंड इंडियन एयरफोर्स से सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को मिला। नेक्स्ट, उस 10वीं एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जो कंडक्ट कराई गई बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका 12 अगस्त से कमेंस हुई श्रीलंका में। एक्सरसाइज का नाम है मित्रा शक्ति। तो इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई एंड ये 10वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट ईयर जो 9वां एडिशन था वो पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, इंडिया में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन नेवी ताकि 6 एडवांस सबमरीन्स को डेवलप किया जा सके इन पार्टनरशिप विद जर्मनी थिस्क्रुप मरीन सिस्टम्स अंडर प्रोजेक्ट 75I इनिशिएटिव। P75I मतलब प्रोजेक्ट 75 इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। तो किनको कॉन्ट्रैक्ट मिला? वो है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। 60,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया इज शेड्यूल टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 2 फाइटर जेट्स कब से? 2029 से। नेक्स्ट, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का नाम बताओ जो कि एक सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट के अंदर था अभी बाय डीआरडीओ अलॉन्ग विद इंडियन आर्मी के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। इसका नाम रहेगा गौरव। गौरव है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, ठीक है, जिसको अभी टेस्ट किया गया डीआरडीओ एंड इंडियन आर्मी के द्वारा। कहां पर टेस्ट किया गया इसको? जैसलमेर में टेस्ट किया गया इन राजस्थान, ठीक है। एंड इसकी रेंज 200 से लेके 300 मीटर्स तक की रहेगी एट द मिनिमम, और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 4 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी या फिर किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड इन कंट्री मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस फॉर द 12 बोइंग P8I एयरक्राफ्ट के लिए ऑफ द इंडियन नेवी। तो किस कंपनी ने ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की? मेंटेनेंस ओवरऑल सर्विसेज, MRO सर्विसेज, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल, बोइंग के द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने ट्रांसफर किया टेक्नोलॉजी को, या TOT साइन हुआ, एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साइन हुआ ऑफ डैश का, जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है, इंडियन कंपनीज को फॉर देयर मास प्रोडक्शन। तो एक्सप्लोडर का यहाँ पे TOT साइन हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ताकि इसका मास प्रोडक्शन हो सके, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनीज को शिफ्ट किया गया है।